साहब का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने हमें दावत की और यहां पर शहर कराची में इस मिनी पाकिस्तान में आप लोगों के सामने अपनी फरियाद रखने का एक मौका फराहम किया। मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले अब से चंद घंटा पहले हमारे शुमाली वजीरिस्तान के पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा ईद रहमान वजीर के चचा रईस खान वजीर, जिनको टारगेट किलिंग में कत्ल कर दिया गया है, मैं उसकी शदीद मजम्मत भी करता हूं और हमारे मुल्क के इस सिक्योरिटी ऑपरेटर्स पर ये वाकयात एक दफा फिर एक सवालिया निशान उठाते हैं कि क्यों कर इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद क्यों कर एक छोटे से जिले में इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी के बावजूद इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो मैं इस मुल्क के हुक्मरानों को, वजीर आजम इमरान खान साहब को, अगर वो वजीर आजम है तो जवाब दे कि इनकी वजूहात क्या है। मैं आज के दिन शुहदाए कारसास को, उन शुहदा को जिनको आज ही के दिन एक खुदकश धमाके में शहीद किया गया था, इस मकसद के साथ, इस सोच के साथ कि शायद यहां पर बम धमाके करके शायद यहां पर सियासी कारकुनों को शहीद करके हम उन सियासी कुव्वतों को दबा सके, लेकिन उन कुव्वतों को, उन आमिरों को जिनकी ये सोच थी और जो सियासी कुव्वतों, सियासी नजरियात को दबाना चाहते थे, आज मैं उनको कहता हूं कि वो तो आज इस धरती पर कदम भी नहीं रख सकते, लेकिन जिन सियासी कुव्वतों को वो खामोश करने निकले थे और जिनको खामोश करने के लिए ये बम धमाके और इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए थे, वो आज भी अपनी नजरियात पर कायम है और आपके सामने मौजूद है। मेरे साथियों, 16 तारीख को गुजरावाला में एक जलसा हुआ था। उस जलसे में पाकिस्तान की 3 दफा मुंतखब वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ खदशात का इजहार किया था। मियां साहब ने पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ पर कुछ इल्जामात लगाए थे और वो इल्जामात कुछ मामूली इल्जामात नहीं थे और वो इल्जामात किसी आम आदमी की तरफ से भी नहीं थे, वो पाकिस्तान की 3 दफा मुंतखब शुदा वज़ीर आज़म की तरफ से थे। होना तो ये चाहिए था कि उस इल्जामात के जवाब में पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म, अगर वो वज़ीर आज़म है, उस इल्जामात के जवाब में वो
ان کا خیر مقدم کرتے اور تحقیقات کا اعلان کرتے اور تحقیقات الزامات کے بعد تحقیقات کے لیے ان کا جو فارمولہ جب تک وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے ان کا فارمولہ یہ ہوتا تھا اور وہ ہمیں ہر روز یہ بھاشن دیا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں یہ قانون ہے، پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب الزامات لگتے ہیں تو وہ عہدیدار یا حکومتی جو بھی عہدہ ان کے ساتھ ہے وہ مستعفی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ قانون پھر آپ نے بدل دیا ہے. بجائے یہ کہ آپ ان سے استعفے کا مطالبہ کرتے، وہ الزامات جو لگے تھے موجودہ آرمی چیف پر، آپ ان الزامات کی تحقیقات کرتے. آپ نے الٹا رد عمل میں اٹیک کرنا شروع کر دیا، جوابی وار شروع کر دیا آپ نے. اور جوابی وار میں بھی آپ نے کچھ مزید جرنیل کو انوالو کر دیا. اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، اس کی وضاحت آپ نے نہیں کی کہ جو الزامات لگے اس میں کتنی صداقت ہے. آپ نے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ فلاں سال میں ایک اور جرنیل نے بھی اس طرح کیا تھا. تو جناب عمران خان صاحب، ہم آج پھر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے الزامات میں حقیقت ہے یا میاں صاحب نے جو الزامات آپ پر لگائے تھے، ان دو افراد پر لگائے تو ان میں حقیقت ہے، ان سب کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آپ آج ہی اعلان کریں کہ سن 48 سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس ملک میں، ہم اس کے لیے ایک ٹروتھ کمیشن بناتے ہیں. جو آپ نے الزام لگائے ہیں اس کی بھی تحقیقات کرے، جو میاں صاحب نے الزامات لگائے اس کی بھی تحقیقات کرے. اور یہ ہمارے پی ڈی ایم کے انیشل ڈرافٹ میں بھی یہ بات موجود ہے. اور یہ بڑھ کے ان شہداء کا بھی تحقیقات کرے کہ کون کون ان کی قتل عام میں ملوث تھا. بابا سے لے کر خر کمر میں جو واقعہ ہوا تھا، وہاں پر جو شہداء ہوئے تھے اس کی بھی تحقیقات کرے کہ کون اس میں ملوث تھا. یہ جتنے عامر یہاں پر گزرے ہیں، جتنی جنگیں یہاں پر گزری ہیں، چاہے وہ ایوب خان آئے تھے، چاہے وہ ضیاء الحق کا مارشل لا آیا تھا، چاہے وہ پرویز مشرف کا آیا تھا، یہ ٹروتھ کمیشن پھر ان سب واقعات کی بھی تحقیقات کرے. ساتھ ہی ساتھ یہ ٹروتھ کمیشن پھر اس جنگ کی بھی تحقیقات کرے جو ہمارے پختونخوا وطن پر مسلط کر دی گئی تھی. جو ڈالر کی جنگ ہمارے خطے میں مسلط کر دی گئی تھی، یہ ٹروتھ کمیشن پھر اس جنگ کی بھی تحقیقات کرے کہ اس جنگ میں کس کس جرنیل نے اپنی تجوریاں بری ہے، کون کون اس سے مستفید ہوا ہے. اور یہ جو ہماری دو نسلوں کو انہوں نے اس ڈالر کی جنگ میں تباہ برباد کر دیا تھا، ان کی خون کا بھی پھر پتہ چلا سکے کہ کون اس کے خون میں ملوث تھا اور کن کے منصوبوں کی وجہ سے یہ ہمارا خطہ پچھلے 40 سال سے ایک جنگ مسلط کر دی گئی تھی اور ایک آگ میں ہمیں دھکیل دیا گیا تھا، جس کے کانسیکوینسز پھر پورے پاکستان کو دیکھتے پڑے. یہ ٹروتھ کمیشن پھر ضرب عضب آپریشن اور آپریشن رد
फसाद का भी थोड़ा एहतसाब करे कि यह ऑपरेशन आया दहशत गर्द के खिलाफ हुए थे या ये ऑपरेशन हमारे घरों से सामान की चोरी के लिए हुए थे। ये कमीशन फिर उस अमल की भी तहकीकात करे कि एहसानुल एहसान कहां से आया था, किस अदालत में उसको पेश किया गया था, कौन से उस पर जराइम थे, कौन सी उस पर एफआईआर थी, किस सेफ हाउस में उसको रखा गया और फिर किस तरीके से उसे जाने दिया गया। हम जब अपने खित्ते में दहशतगर्दी की बात करते हैं, बावजूद इस अमल के कि इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, इतने बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन दहशतगर्द अब इस पूरे खित्ते में फिर से रिग्रुप हो रहे हैं। और हमें खतरा यह है कि शायद कहीं किसी और जंग का कोई और कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक दफा फिर हमें ही इस्तेमाल किया जाएगा, हमारी आने वाली नस्ल को ही इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे बच्चों को ही इस्तेमाल किया जाएगा। हम जब ये सारे हकाइक दुनिया के सामने रखते हैं, तो हमारी हुकूमत हमें गद्दार डिक्लेयर कर देती है। गद्दारी के फितरे फिर उसके बाद हमारे ऊपर लगते हैं, हमारे साथियों को शहीद किया जाता है। अगर इतनी ही ये चाहते हैं, मैं आज इस स्टेज से ये जो ट्रूथ कमीशन की मैंने बात की, मैं उसमें एक और बात भी ऐड करना चाहता हूं कि ये ट्रूथ कमीशन फिर अरमान लूनी, ये ट्रूथ कमीशन फिर नकीब मसूद, ये ट्रूथ कमीशन फिर ताहिर दावड़ और आरिफ वजीर के कत्ल की भी तहकीकात करें। क्या वजह है कि यहां पर वाकयात होते रहते हैं, सियासी वर्कर कत्ल कर दिए जाते हैं, लेकिन कोई तफ्तीश नहीं। तो कुछ तो है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। हम इस स्टेज से ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि ना आपकी टारगेट किलिंग हमें अपने नजरियात से हटा सकती है, ना आपके बेबुनियाद एफआईआर हमें अपने नजरियात से हटा सकती है। मेरे साथियों, अखलाकी और इंसानी गिरावट की आप इंतहा देखें कि और तो जब हमारे कारकुनों पर बस नहीं चला तो हमारे कारकुनों के वालिदैन को उन्होंने बेबुनियाद केसेस में फंसाने की कोशिश की गई। हमारी एक रहनुमा गुलालई इस्माइल के वालिदैन पर बेबुनियाद दहशतगर्दी के केसेस बनाए गए हैं। और ये वही गुलालई इस्माइल थी जिनको इसी रियासत पाकिस्तान में चंद साल पहले अवार्ड से नवाजा था और जिसकी एप्रिसिएशन में आज के मौजूदा पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी के ट्वीट्स भी मौजूद हैं। लेकिन वो ट्वीट्स अब इतनी हाईलाइट हो गई है कि वहां से ये लोग यू टर्न भी नहीं ले सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते। मैं इस मौजूदा सूरत हाल में इस मूवमेंट को आगाज समझता हूं। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए और इस अमल के लिए भी मैं इसको एक आगाज समझता हूं कि पाकिस्तानी इस रियासत में सियासी वर्कर्स के साथ जो सलूक रवा रखा गया है, उस सलूक की रोकथाम के लिए भी ये एक पहला कदम है। और ये पॉलिटिकल वर्कर्स, इनका ताल्लुक पाकिस्तान में
चाहे जिस भी इलाके से हो, चाहे वो हमारे शुमाली वजीरिस्तान के हनीफ पश्तीन हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के बाबा जान हो, चाहे वो ओकाड़ा के महर सतार हो, चाहे वो बलूच या सिंधी सियासी वर्कर्स और सियासी लीडर्स हो, यहां पर इस मुल्क में मौजूदा हुकूमत ने उन पर सियासी नजरियात के बुनियाद पर जो बेबुनियाद केसेस बनाए हैं, मेरे ख्याल में ये इसकी मिसाल हमें आमरीत और बदतरीन आमरीत में भी नहीं मिलती। और ये इस मौजूदा हुकूमत को मैं आमरीत से बदतर इसलिए समझता हूं कि इन्होंने तो एक पंचिंग बैग के लिए एक मसनूई वज़ीर-ए-आज़म को भी आगे बिठाया हुआ है। हकीकत में वो फैसले करने वाली कुव्वतें वो पाकिस्तान की फौज और उसकी एजेंसियां हैं। मैं आखिर में एक बात एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस की भी जरूर करना चाहता हूं। इस मुल्क में एक कानून है, एक कायदा है, एक आइन है, लेकिन इस एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस की सूरत में उस कानून को हर दिन तोड़ा जा रहा है। उस कानून को हर दिन तोड़ा जा रहा है और 8-8, 10-10 साल तक ये हमारे बेगुनाह लोग पाकिस्तान आर्मी के इंटरमेंट सेंटर्स में वो बगैर कोई जुर्म बताए, बगैर कोई गुनाह बताए, बगैर कोई चार्जशीट दिए वो 8-8, 10-10 साल से गैर कानूनी तौर पर इन इंटरमेंट सेंटर्स में पड़े हुए हैं। मैं इमरान खान साहब से ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि वो ट्रुथ कमीशन जिसके बनाने में आपको हिम्मत तो नहीं है, लेकिन ये पीडीएम और यहां पर जितने भी सियासी कायदीन है, ये स्टेज से मेरे ख्याल में आज वादा करेंगे कि ये जब इनको इक़्तिदार मिलेगा तो ये वो ट्रुथ कमीशन इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। और वो ट्रुथ कमीशन फिर वो क्वेटा के सड़कों पर अपनी फरियाद करने वाली, अपनी चीखों पुकार करने वाली हसीबा कमरानी के दो भाइयों हसन कमरानी और हिजबुल्लाह कमरानी के भाइयों का भी जरूर पता लगाएगी कि इन्होंने किसने उठाया और किस जुर्म में उठाया और उनको कहां पर रखा गया। मैं आखिर में ये जो मौजूदा हालात हमारे साबिका फाटा में एक दफा फिर मुस्तरद करने की कोशिश की गई है, उसके भी एक जिक्र करना चाहूंगा कि आए दिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही है, आए दिन कस्टोडियल किलिंग्स हो रही है, कस्टडी में लोगों को मारा जाता है, फिर ना कोई एफआईआर है, ना कोई तहकीकात है। मैं कल वजीरिस्तान से आया हूं, 7 दिन से एक धरना बैठा हुआ है, वो एक कस्टोडियल किलिंग के खिलाफ बैठा हुआ है और वहां पर बगैर किसी जुर्म बताए जो चंद लोगों को डिसअपियर किया गया है, उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहा है। मैं साथियों आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन आखिर में एक बात रियासत को कहना चाहता हूं कि रियासतें इस तरह नहीं चल सकती, रियासतें वॉर फ्रेंचाइजीज के जरिए नहीं चल सकती, रियासतें जंगी कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए नहीं चल सकती। रियासत चलाने के लिए रियासत के शहरियों को यह एहसास दिलाना होगा कि आप इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क में गुलाम नहीं। रियासत चलाने के लिए इक़्तिदार आवाम को मुंतकिल करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो मेरी अपनी सोच के मुताबिक ये कंपनी नहीं चलेगी। मैं फैज साहब के शहनशार से आपसे इजाजत चाहूंगा। अब वही हर्फ जनू सबकी ज़बां टहरी है। ये शेर मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस बयानी की बुनियाद हमने रखी है वो बयान या पाकिस्तान की तूल व अर्ज में फैल चुका है। अब वही हर्फ जनू सबकी ज़बां टहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहां ठहरी है।
ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹہری ہے. بہت شکریہ.